but we need to have courage to stick to our guns. Swami Shardanandi Ji Maharaj, during this first convention of Ramakrishna Mission 1926, he gave a very important lecture. There he says that any great movement, it undergoes several phases. So when the great movement starts, first people will ignore you, then they will ridicule you, then they will oppose you, and then finally, if they see that ignoring them, isolating them, ridiculing them, making fun of them, or opposing them, it does not make any effect on this movement, they go on doing what they want to do, then people will start accepting you. So that initial turbulent phase we all have to pass, we all have to stand the test of time. So this is we all have to do if we are sincere in our belief. Many people, many organization, where the moment they see any least amount of opposition, least amount of resistance, they will lower their ideal immediately. So we have to decide whether we stand for ideals or we stand for social acceptance. But we have to choose our fight. We have to pick and choose our fight. See, Thakur and Swamiji both accepted, Thakur and Mother both accepted many social convention. The way women should live, we have seen Mother's life. She used to live in that Nahbat. She used to be so restricted in her movement. She was so conservative also. So we have to pick our fight. We cannot go on fighting for every point that we believe in. Thakur, he himself used to believe in so many things, right? So in spite of his attaining Nirvikalpa Samadhi, he was socially conservative because he knew that, see, if we become too much radical, people will stop accepting us. So, for example, there was so much opposition to Belur Math in Bali, surrounding Belur Math area. But the moment we start Durga Puja, everyone realized that no, they are also very traditional Hindu monastic organization. So they started respecting us. So see, we have to pick and choose our fight. We cannot fight on every point, on every belief that we have. We have to conserve our prana shakti, our psychic energy, and focus it on the points which we truly believe in. ये जो माँ कहती है ना कि मन ना मत तो हस्ती, मन है ना कि पागल हाथी है, मत तो हाथी है. सब समय मन को काम में लगा करके रखना चाहिए. थोड़ा सा भी मन को खाली रखने दिया तो ये पागलपन करेगा ही करेगा. देखिए यहाँ पे जो ठाकुर कहते हैं ना कि ये सब छोड़ करके ये दो, ए नाव अमार, ए नाव तोमार, ए दाव अमार, ये लो तुम्हारा, ये दो मेरा, ये सब क्या है पता है? ईश्वर के साथ में जो अपना रिलेशन है उसके लिए है. माने जैसे कहा, माने स्पष्ट कहा. ठाकुर कहते हैं लज्जा घृणा भय तीन थाकते नहीं, आमी बोलची लज्जा घृणा भय तीन थाकते होए. ठाकुर ने कहा है कि लज्जा घृणा भय ये तीन रहते नहीं होगा, किंतु मैं कहती हूँ कि लज्जा घृणा भय तीन थाकते होगा. तो क्या है कि ये सोशल कन्वेंशन जो है उसको थोड़ा बहुत मान करके हमको चलना होता है. मन को कष्ट भी होता है तो क्या करेंगे. किंतु जहाँ तक ईश्वर का प्रश्न आता है, देखिए ईश्वर प्राप्ति में कोई विघ्न डालता है. ठाकुर क्या कहते हैं कि ये जो हम लोग जनरली बड़ा भाई है, पिताजी है, इन सब की बातों को सुनते हैं, समाज की बातों को सुनते हैं, किंतु विभीषण को देखिए, भगवान राम के लिए बड़े भाई की बात उन्होंने अस्वीकार कर दी. ये ध्रुव को देखिए, भगवान प्राप्ति के लिए पिताजी को अस्वीकार कर दिया. तो जहाँ तक ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधा बनता है समाज, तो उनको रिजेक्ट कर देना है. ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में हमारी प्राण शक्तियों को जो बिखेर देता है, वो सब कन्वेंशन से हमको मुक्ति पानी है. किंतु इन जनरल यदि अपनी कामना वासनाओं की पूर्ति करने के लिए यदि कोई बाधा आकर के खड़ी होती है और हम पागल हाथी की तरह बिहेव करें तो वो भी तो नहीं चलेगा. जनरली हमको लगता है कभी कभी कि समाज के सभी ये जो कन्वेंशन है गलत है, किंतु ऐसा भी तो नहीं है. मन की वासनाओं को कंट्रोल करने के लिए तो यह सब बनाया गया है ना. ये विवाह की प्रथा है. क्यों आप समाज में विवाह की प्रथा प्रारंभ की? पशुओं में तो ऐसा नहीं होता है कि एक पत्नी या एक पति के साथ में विवाह करके उसके साथ में जन्म पूरा जीवन भर का रिश्ता निभाए. ऐसा तो होता नहीं है. हमारे में क्यों है? क्योंकि मन की वासनाओं को कंट्रोल करने के लिए विवाह प्रथा नहीं होती. और जिसको जिसके साथ में वो करना है, वो यदि इस तरह का संबंध बनाना है बनाएगा, तो समाज में पूरी अराजकता फैल जाएगी. बोल करके विवाह प्रथा है, बोल करके ये पति का पत्नी का ये जो सब धर्म बनाए गए हैं, ये धर्म क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि मन के भीतर में कामना वासना है.
उसको पूरी करने के लिए हम प्रयास करेंगे तो वेद कहते हैं कि भले मनुष्य का हृदय है, कामना वासना रहेगी, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, किंतु आप उसको पूर्ण कीजिए, धर्म के रास्ते पे कीजिए। आप समाज के कुछ नियमों को स्वीकार करके कामना वासनाओं की पूर्ति कीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। किंतु कामना वासना की पूर्ति करने के लिए राक्षस की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। ये चंगेज खान आर्मी लेकर के जाता था, जो शहर जो गांव रास्ते में आया सब पुरुषों को मार दिया, स्त्रियों पे अत्याचार किया, बच्चों को जिंदा जला दिया, उनका सर काट करके उनके मस्तिष्क का बड़ा सा ये पहाड़ बना दिया। इस तरह से जो राक्षसी पशुवत आचरण करेंगे तो सभ्यता तो खत्म हो जाएगी। इसके लिए ये सब कन्वेंशन बने हैं। कन्वेंशन का आवश्यकता क्या है वो समझना है, हमारी कामना वासनाओं को कंट्रोल में रखने के लिए बने हैं, और कन्वेंशन को कहाँ पे छोड़ देने हैं वो समझना है कि ईश्वर प्राप्ति में यदि बाधा होते हैं तो फिर उसको रास्ते से में नहीं रहना चाहिए, उसको फिर रास्ते में से हटा देना चाहिए। हम जितना ठाकुर को पढ़ते जाएंगे, जितना रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य का अभ्यास करते जाएंगे, वैसे ही देखेंगे कि ये जो दिन प्रतिदिन की जो चैलेंजेस है अपनी साधना में, अपने आध्यात्मिक जीवन में, सबके जैसे कि समाधान हमको मिलते जाएंगे। और साथ में ही सिर्फ समाधान ही नहीं मिलेगा, हमको पता भी नहीं है इस तरह की समस्या हमारे जीवन में है, वो भी पता चलना शुरू होगा कि ये समस्या थी बोल के मुझे पता ही नहीं था। माने सिर्फ समाधान ही नहीं मिलता है, समस्या भी मिलती है ये पता चलेगा कि ये समस्या है और इसका ये समाधान है, वरना तो ये पाश मेरे पे बंधा हुआ है, पता ही नहीं चलता। सो दिस इज़ द ग्रेटनेस ऑफ रामकृष्ण विवेकानंद लिटरेचर। सबको अपना अपना बैटल लड़ना है, क्योंकि दिस आर हाईली कस्टमाइज्ड। अब जिसका जो जीवन है फिंगरप्रिंट की तरह सबका यूनिक लाइफ पैटर्न है। रूल ऑफ थंब ये है कि जो ठाकुर कहते हैं मने वने और कोणे, ये जो बैठ कर के जो तपस्या करनी है उसमें बाधा जब तक नहीं आती है तब तक कोई वो आ बेल मुझे मार बोल करके जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इनमें बाधा आना शुरू होती है, मैं शांति से बैठा हूँ यहाँ पे और फ़ोन बज रहा है, मैं फ़ोन नहीं उठाऊँगा तो सामने वाला मुझे गाली देगा कि क्यों फ़ोन नहीं उठाया। इन दैट केस हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अरे भाई ये क्या हो रहा है, राइट। सो अपनी जो साधना हमने निश्चित की है, जैसे कि ये सुबह का क्लास है हमारा, मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग मोर और लेस रेगुलर आ रहे हैं। तो अभी यदि आपने ये एक बैटल चूज़ की है कि सुबह क्लास न कि यदि बहुत सारे हमारे डिवोटी मंगल संध्या आरती में जाते हैं, इफ़ आई हैव चूज दिस एज माई साधना, तो फिर मुझे देखना है कि इसमें बाधा न आए, ऐसा करना है। सो साधना मेरी ये मैं कर सकता हूँ, दिस इज़ मेरा ये कैपेसिटी है, मैं इतनी साधना कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग जैसे अभी रिट्रीट में जाते हैं तो वो उसके लिए आपको तो समय चाहिए। बाकी सब कंपनियों में इतना तो फटाफट छुट्टी मिलेगा नहीं कि मुझे 1 महीना रिट्रीट में जाना है, 1 सप्ताह जाना है तो मुझे छुट्टी दे दीजिए, तो नहीं मिलता है। सो इन दैट केस आपको सोचना है कि फिर ये कंटिन्यू करे कि न करे यहाँ पे। सो अपने लिए एक साधना निश्चित कर देनी है, और जब तक साधना में विघ्न नहीं आता है तब तक हमको फिर वी हैव टू एक्सेप्ट वॉट एवर देर इज़। उसमें जब बाधा आनी शुरू हो जाए तो फिर देखना है। अभी सोच लिया कि मैं सुबह को अर्ली मॉर्निंग उठूंगा, अपने बहुत सारे डिवोटी है कि जो कि अर्ली मॉर्निंग 5 बजे क्लास करते हैं, वो तो विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग, तो वेरी गुड एक्चुअली, मैं भी सोच नहीं सकता ऐसा इस समय क्लास करना, तो ये जो करते हैं सो विद विच इज़ वेरी गुड। तो अभी यदि आपने ये ठीक किया है कि सुबह को 5 बजे ये प्रेयर का क्लास है, ऑनलाइन वगैरह करना ही है, तो फिर रात को यदि मुझे देरी तक जगा के जो रखता है उसको मुझे छोड़ना पड़ेगा, राइट। सो ये हमको अपना साधना ये है, पहले ये डिटरमाइन किया और फिर साधना में क्या विघ्न डालता है उसको फिर छोड़ना शुरू करो। दिस इज़ अ रूल ऑफ थंब। अभी मैंने वो उदाहरण दिया था ना, वो जो प्राइवेट सेंटर था 1970s से वो जुड़े हुए हैं, और पूरा जीवन जैसे कि यूथ से ही, कॉलेज के बाद से ही, जैसे वो राम विवेकानंद केंद्र अपना वो जो प्राइवेट सेंटर था रामकृष्ण विवेकानंद केंद्र, उसको डेडिकेट किया। तो वो मुझे बता रहे, अभी तो वो रिटायर भी हो गए, उनका लड़का भी अभी साधु है अपने ऑर्डर में। तो वो मुझे बता रहे थे कि देखिए महाराज, मैंने ठीक किया कि जैसे जॉब से आऊँगा सीधा मैं अपने केंद्र पे आऊँगा और फिर और कुछ टेंशन नहीं लेना है मुझे, जो भी सोशल कन्वेंशन है मेरी वाइफ जाएगी, मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर कुछ समय के बाद में मेरे रिलेटिव्स ने मुझे बुलाना भी बंद कर दिया। सो आई एम ओके विद दैट।
तो देखिए कि ये जीवन भर का व्रत ले लिया। मैंने खुद ने अपनी नज़रों से देखा है, मैं केंद्र पे जाता था, ऐसा दिन हो ही नहीं सकता कि कोई नहीं आए वहाँ पे, वो छुट्टी के मतलब जॉब से निकलने के बाद में। तो देखिए कि ये उन्होंने ठीक कर लिया कि शाम तो मुझे केंद्र पे ही बैठना है और फिर रास्ते में जो आएगा उसको छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने जॉब छोड़ दी है, बीवी बच्चों को छोड़ दिया, ऐसा नहीं। घर किया है, नौकरी भी करते हैं, किंतु जो मेरे पास में टाइम है कि नौकरी के बाद में 2-3 घंटा मुझे मिलते हैं, तो ये फालतू का बिताने की बजाय मैं केंद्र पे जाके बैठूंगा। सो इतना भी जो उन्होंने पकड़ लिया और उसके सामने जो बाधा आई उसको हटा दिया। तो ऐसा नहीं कि जॉब छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं किया। और यानी कि जैसा आपने कहा कि साधना पकड़ करके अपनी लाइफ को एंकर कर देना है उसमें, फिर आसपास में जो होता रहे होता रहे।